कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, my name is Khurshid Anwar Qasmi, your online English teacher and trainer. Just you have completed my book Muntakhab Angrezi Grammar Part 1, and I hope so that after completing this book you got lots of knowledge about grammar and your grammar has been gone, because in first part I have focused the basic classes of English language, and after that I taught all English tenses with active and passive, and after that I taught all modal verbs such as will, shall, can, could, may, might, should, must, ought to, would. So all modal verbs we have completed, and now we are going to start the second part of Muntakhab Angrezi Grammar. And brothers and sisters, now we are learning 90 days English speaking course. This is a complete course for learning English language. If you want to speak English, if you want to read English, if you want to write English, then you need to solve your grammatical problems. Then my book Muntakhab Angrezi Grammar is the good resource to improve your English language and to become good in English grammar. Brothers and sisters, as you can see on the title of this book, Grammar Translation Speaking, Khutut Navesi और ज़ख़ीरे अल्फाज, सब कुछ एक ही साथ. In this book we will study grammar. Every day I'll give you one essay. मज़मून हर रोज इस किताब के अंदर आपको दी जाएगी. ग्रामर पर अच्छी रोशनी डाली जाएगी. ट्रांसलेशन के ज़ैल में दो तरह के ट्रांसलेशंस आई विल प्रोवाइड यू. वन इज दैट उर्दू टू इंग्लिश एंड सेकेंड इज दैट इंग्लिश टू उर्दू. Speaking, especially in this book I have written English conversations between two friends. If you want to become a good English speaker, then brothers and sisters, you need a person with whom you can speak English language. So here in every lessons I have written a beautiful conversations which you can use to communicate with each other and which you can use to talk with each other. Khutut Navesi letter writing is also written in this book. ज़ख़ीरे अल्फाज सब कुछ एक ही साथ है. अरबी ग्रामर के निहज पर अंग्रेजी ग्रामर की बिल्कुल मुनफरिद किताब है. 90 days English speaking course मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 1. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अंग्रेजी ग्रामर की एक ऐसी मुस्तनद किताब है जो आपको अंग्रेजी में माहिर बना दे. मुसन्निफ खुर्शीद अनवर कासमी, जिनसे आप लोग हम कलाम है. लेट्स स्टडी. एज यू कैन सी हियर इज आल्सो रिटन एवरीथिंग. दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस बुक you can find 304 pages and it is published by International Institute of English Language. I'm a director of this institute. So you can study preface also why I have written this book. So here I have written and mentioned. And इस किताब को कैसे पढ़ें, how to read this book, you should also study this page. And dear students, I'm going ahead. दिस इज माई यूट्यूब चैनल. इस पूरी किताब की सबकन वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय खुर्शीद सर पर मौजूद है और IIL मोबाइल ऐप पर मौजूद है. लेकिन ये जो बात कही गई है कि सबकन पूरा जो दर्स है वो यूट्यूब पर मौजूद है, ऐसा नहीं है. देखो कहीं से तो यूट्यूब पर दिया गया है, लेकिन IIL देवबंद जो मोबाइल ऐप है इस पर हर एक सबक की वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगी. अगर आप चाहते हैं कि बितरतीब आप इसको पढ़ें तो जनाब आप IIL देवबंद एप्लीकेशन डाउनलोड करें और मामूली से खर्चे से यहाँ से आप कोर्स परचेज करें. तो ये जो हमारा अंग्रेजी ग्रामर हिस्सा दोम है, इसके अंदर हम शुरुआत जो 61st डे से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो कंप्लीट कोर्स था इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ये 90 डेज का हुआ करता था. 90 डेज में से 60 डेज वी हैव कंप्लीटेड इन मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 1 एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड इंशाअल्लाह ताला. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 61. सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट
Today we are going to discuss a very important topic and the very hard topic, and that is a direct and indirect speech. And inshallah ta'ala we will study lots of things. First of all, we will understand the concept of direct and indirect speech, and after that I will make a good practice, and after that I will give you write the following sentences into indirect speech. So here is a practice also in written practice and oral practice also. And after that here is a one essay अबाउट अंग्रेजी जुबान, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हम एक मजमून निगारी आज से हम शुरू कर देंगे। अब तक जो हम लोगों ने अंग्रेजी ग्रामर हिस्सा अव्वल में शुरू किया था तो वो मजमून निगारी नहीं थी, बल्कि सिर्फ जुमला निगारी हम लोग कर रहे थे। मतलब हर क्लास से रिलेटेड लगभग 10 जुमले, 15 जुमले, 20 जुमले हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम लोग बाज़ाब्ता तौर पर मजमून निगारी शुरू कर देंगे। रोज़ाना क्लास में एक मजमून उर्दू का दिया जाएगा जिसको अंग्रेजी बनाना है, और एक मजमून इंग्लिश का देंगे जिसको उर्दू में आपको चेंज करना है। और ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके बाद एक इंग्लिश कन्वर्सेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेज के ऊपर कन्वर्सेशन अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन है। पहले हम सेल्फ इंट्रोडक्शन पर मौजू पर सईद और अनवर के बीच की गुफ्तगू है, ये आप और आपके फ्रेंड के बीच की गुफ्तगू हो सकती है। 62वें सबक को आइंदा कल देखेंगे। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कुछ तमहीदी बातें। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। से रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मा। बदस इफ यू हैव अ लाउड वॉइस, अगर आपकी आवाज बुलंद हो तो लेट्स स्टार्ट। 61वां दिन पढ़ना शुरू करिए। अपने कोर्स के 61वें सबक में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। आमतौर पर इस बहस को काफी मुश्किल समझा जाता है, लेकिन इस सबक में इस बहस को बहुत ही सहल अंदाज में समझाने की कोशिश की जाएगी। सबक को गौर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। स्पीच का लुग़वी माना तो पहले इसको मुझे बताने दो, जब मैं बोला करूंगा तो आप खामोश हो जाना, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। आज हम लोग मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर का 61वां सबक शुरू कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है, हेडिंग है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर आप स्कूल बैकग्राउंड से हो, आपने स्कूल में पढ़ाई किया हो, तो आपको मालूम होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना पेचीदा बहस इसे माना जाता है। स्कूल वाले लोग इसे बहुत पेचीदा मानते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये सचमुच पेचीदा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये रियल में बहुत मुश्किल बहस है। अगर आप समझ गए और मैं समझाने में कामयाब रहा तो गनीमत कहिए। यहाँ पर 2 लेक्चर हम लोग देखेंगे इस मौजू को समझने के लिए। एक तो ये किताब वाले लेक्चर है और एक वाइट बोर्ड वाला लेक्चर। वाइट बोर्ड वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी क्लास में मैंने किताब पहले क्यों खोला कि पहले एक दफ़ा देखें कि इसमें लिखा मैंने क्या है, एक दफ़ा पढ़ लो, फिर उसके बाद वाइट बोर्ड पर आएंगे ना तो 100% ज़्यादा समझ में आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इंग्लिश ग्रामर में इसे नरेशन की बहस भी कही जाती है। इस टॉपिक का दूसरा नाम है नरेशन। क्या नाम है बताइए प्लीज? नरेशन। नरेशन का मतलब भी वही होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का भी मतलब वही होता है। तो आप इसको जिस टॉपिक से समझना चाहे समझ जाइए, बस बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझते हैं। तो इस सबक को, मुश्किल बहस को अगर आप समझना चाहते हैं तो बहुत सहल अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले इन इबारतों से समझाऊंगा और उसके बाद वाइट बोर्ड पर लेकर के मैं आपको इंशाल्लाह बड़ी तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा। पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। स्पीच किसे कहते हैं, पढ़ो। स्पीच का लुग़वी माना कौल, जुमला, कलाम, गुफ्तगू और तकरीर के है, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर में स्पीच से मुराद ये है कि अगर मुतकल्लिम ने आपसे कुछ कहा और आप इस बात को किसी तीसरे शख्स से नकल करना चाहते हैं तो आप इसको 2 तरीके से नकल कर सकते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट। आप अपना मुंह जो है मोबाइल से और करीब करो, थोड़ा जोर से पढ़ो, ठीक है। इसको 2 तरीके से नकल कर सकते हैं। नंबर 1 बोलो। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, रिवायत बिल लफ्ज से। नंबर 2 डायरेक्ट स्पीच, रिवायत बिल माना से। अगर आप किसी के देखिएगा, पहले इसे समझते हैं स्पीच क्या होता है जनाब। हम लोगों ने देखा होगा, हम लोग सोचते हैं कि स्पीच कहते हैं सिर्फ तकरीर को, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। स्पीच का लुग़वी माना कौल है, जुमला, कलाम है, तकरीर भी कह सकते हैं आप। आमतौर पर जब 2 बंदे आपस में बात करते हैं तो उस वक्त जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। वक्त गुजरने के साथ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद आप
किसी साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने आपसे कुछ कहा और आप उनकी बात अब किसी और से नकल करना चाहते हैं। ये 2 रोज बात करेंगे आप। कब करेंगे? 2 रोज बाद। एक दिन बात कर सकते हैं, 1 घंटा बात कर सकते हैं। बहरहाल जब आप नकल कर रहे होंगे ना, उस वक्त ये पास्ट हो चुका होगा, क्योंकि जिस वक्त नकल करेंगे उसी वक्त किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। उससे 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले किसी ने हमसे कुछ कहा। अब जब हम उसकी बात नकल करेंगे तो जिस जुमले को हम बताने जा रहे हैं वो जुमला अब क्या हो गया बताओ? पास्ट हो गया। अब इसको कहने के 2 तरीके हैं। या तो जिस तरीके से मेरे मुंह से जुमले निकले हैं, जो कलिमात, जो अल्फाज निकले हैं, हूबहू आप मेरे कलिमात को, मेरे अल्फाज को आप किसी के सामने पेश करिए, नकल करिए, जर्रा बराबर तब्दीली ना करें, तो इसको डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और अगर किसी की बात में आप कुछ भी चेंज कर देते हैं, मतलब जब उसने बोला था तो प्रेजेंट का सेगा, और अब जब आप नकल कर रहे हैं तो पास्ट का सेगा नकल कर रहे हैं, तो फिर इस सूरत में आपने चेंजिंग कर दिया, जमाने की चेंजिंग किया। तो टेंसेस चेंज कर दे रहे हैं आप, सब्जेक्ट चेंज कर दे रहे हैं आप, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं। कुछ भी चेंज करके अगर आप किसी की बात नकल करते हैं तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ये तो थी इसकी एक तारीफ, जामे तारीफ के डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, और बताओ इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तारीफ आगे भी मौजूद है, पढ़ो बेटा पढ़ो। अगर आप किसी के कौल को लफ्ज बलफ्ज किसी तीसरे शख्स के सामने नकल करते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच यानी रिवायत बिलफ्ज कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा आई एम फीलिंग इल, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, और आपने इस बात को लफ्ज बलफ्ज नकल करते हुए कहा मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। खुर्शीद सर सेड आई एम फीलिंग इल, तो ये डायरेक्ट स्पीच यानी रिवायत बिलफ्ज हुआ। और अगर आपने इस बात को अपने लफ्जों में कुछ तब्दीली करके इस अंदाज से कहा खुर्शीद सर सेड दैट ही वाज फीलिंग इट, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच यानी रिवायत बिल माना हुआ। समझने की जरूरत है। यहाँ पर मैंने कहा कि एक बंदे ने मुझसे कहा आई एम फीलिंग इल, मैं बीमारी महसूस कर रहा हूँ, और मैं सेम थिंग को किसी के सामने नकल कर रहा हूँ। तो उसने आई बोला था, मैं भी आई बोल रहा हूँ उसकी बात को नकल करते वक्त। उसने एम बोला था, मैं भी एम बोल रहा हूँ। उसने फीलिंग बोला, मैं भी फीलिंग बोल रहा हूँ। उसने इल बोला, मैं इल बोल रहा हूँ। यानी जो कलिमात, जो अल्फाज उसने यूज किए थे वो सारा का सारा अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी जर्रा बराबर चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा स्पीच होगा? डायरेक्ट। और जनाब आप कुछ भी चेंज कर देते हैं, जैसे आप कहते हैं खुर्शीद सर सैड, खुर्शीद सर ने कहा कि ही वॉज फीलिंग इल, मैंने कहा था आई, आपने क्या कर दिया बताओ? ही कर दिया। मैंने कहा था एम, आपने उसे वज कर दिया। और मैंने कहा फीलिंग इल, आपने फीलिंग इल बोल दिया। बहरहाल चेंजिंग किया कि नहीं किया? ये जो चेंजिंग के साथ आप बयान किए हैं ना, यही आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया जनाब? इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप सो आपको तारीफ समझ में आ गई होगी। और मैं मौलाना नौशाद साहब से कहूंगा कि आप इस बहस को समझने के लिए तफसील को बगौर पढ़िए। आप पढ़िए जनाब नौशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बहस को समझने के लिए इस तफसील को बगौर पढ़िए। अंग्रेजी ग्रामर में स्पीच जुमला, कलाम और गुफ्तगू को कहते हैं, और गुफ्तगू के लिए कम से कम 2 शख्स का होना जरूरी है। नंबर 1 स्पीकर यानी बोलने वाला, नंबर 2 लिस्टनर यानी लिसनर सुनने वाला। लिस्टनर या जब लिसनर सुनने वाला किसी के सामने कोई कौल नकल करता है तो उस वक्त उसकी हैसियत एक रिपोर्टर की होती है, और वो हमेशा 2 जुमलों का तकल्लुम करता है। उसके पहले जुमले को रिपोर्टिंग सेंटेंस कहा जाता है, जबकि उसके दूसरे जुमले को डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। समझ में आ गई कि भाई इस तफसील को समझना चाहते हो तो समझो। एक बंदा है बोलने वाला मुतकल्लिम, जैसे कि मैं बोलने वाला हूं मुतकल्लिम, और आप है सुनने वाला मुखातब। मुतकल्लिम और मुखातब के बीच में कोई गुफ्तगू हुई, मुखातब ने उसको गायब के सामने क्या कर दिया? पेश किया। इसको आप यूं समझो, हुज्जतुल विदा के मौके पर सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया। बहुत से सहाबे कराम सामने मौजूद थे, और एक बड़ी नस्ल, एक बहुत बड़ी कौम समझ जाइए जो वहां पर मौजूद नहीं थी, गायब थी। तो जो चंद सहाबा मौजूद थे, आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो मेरी बातों को उन लोगों तक पहुंचाए जो यहाँ पर नहीं है।
तो बाज़ सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हूबहू दूसरों के सामने पेश किया, यानी जो लोग गायब थे उनके सामने उन्होंने जर्रा बराबर कोई कमी नहीं की। जो उन्होंने रिवायत पेश की वो रिवायत बिल्लफ्ज़ कहलाती है। चुनांचे वो तमाम सहाबा कराम जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में कोई तब्दीली नहीं की और फिर कोई हदीस रिवायत की है तो उसको हम कहते हैं रिवायत बिल्लफ्ज़। ये हदीस कौन सी होती है? रिवायत बिल्लफ्ज़ वाली हदीस होती है। और वो सहाबा कराम जो कि कमज़ोर थे, इल्म उनके पास उतना ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने अपने अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को टूटी फूटी जैसे भी उन्हें ढंग आया अपने गायबीन के सामने उन्होंने पेश किया। तो इस हदीस को क्या नाम दिया जाता है? रिवायत बिल माना। ठीक है, तो रिवायत बिल लफ्ज और रिवायत बिल माना। तो जो रिवायत बिल लफ्ज है जिसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती है उसी को क्या कहते हैं बताइए? डायरेक्ट स्पीच। और जिसमें चेंजिंग कर दी जाती है उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। अरे जनाब बताइए कि आपको ये बात समझ में आ गई? सभी तलबा बताएं हाँ या ना। बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बारीक पॉइंट है, जल्दी समझ में आता नहीं है। रिपोर्टिंग सेंटेंस पढ़िए जनाब। रिपोर्टिंग सेंटेंस बनाने का तरीका। जब रिपोर्टर किसी के कौल को नकल करे उस वक्त उसके लिए जरूरी है कि वो इस बात पर गौर करे कि असल जुमले में सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर आई हो तो रिपोर्टिंग सेंटेंस बनाते वक्त उस आई को हमेशा वाहिद गायब फाइल यानी ही, शी और नेम से बदल दे। और अगर सब्जेक्ट जमा मुतकल्लिम की ज़मीर वी हो तो रिपोर्टिंग सेंटेंस के सब्जेक्ट को जमा गायब फाइल यानी दे से बदल दे और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म के जिक्र करे, सेकंड फॉर्म में जिक्र करे। मसलन वो कहे ही सेड, शी सेड, अनवर सेड, दे सेड, दे डॉक्टर टोल्ड मी वगैरह। उसके बाद मुतकल्लिम के कौल को रिपोर्टर या तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट की शक्ल में लिख सकता है या बोल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग सेंटेंस बनेगा कैसे? रिपोर्टिंग सेंटेंस, चाहे रिपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को दोनों को कहा जाता है। तो जो रिपोर्टिंग सेंटेंस बनेगा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बनेगा कैसे। इसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सब्जेक्ट पर गौर करना, क्योंकि मैंने बताया कि मुतकल्लिम और मुखातब के बीच में कोई गुफ्तगू थी। अब मुखातब उसे गायब के सामने क्या कर रहा है? मुतकल्लिम के कौल को पेश कर रहा है। अब मुतकल्लिम जिस वक्त वो बोला होगा उसकी दो सूरत होगी, या तो वो अकेला होगा तो वाहिद मुतकल्लिम होगा तो अपने हर जुमले को आई के जरिए से पेश कर रहा होगा। किसको? आई। जैसे आई एम गुड, आई एम वेरी हैप्पी, ओके। लेकिन जब आप उसको नकल करिएगा ना तो उस आई को किससे कर दीजिएगा? ही से बदल दीजिएगा। इसी तरीके से अगर बोलने वाले लोग जमा थे एक से ज्यादा, जैसे कि वी थे, जैसे वी वर हैप्पी, वी वर इन द रूम, वी वर इन द ऑफिस, वी आर इन द ऑफिस, और इस तरीके से बोला उन्होंने, तो वी के जो जमा की ज़मीर है उसको हम किससे बदल देंगे? दे से बदलें। ये ज्यादा बढ़िया आपको व्हाइट बोर्ड पर समझ में आएगा, तो इंतजार कीजिए। अभी जस्ट व्हाइट बोर्ड पर भी मैं इसे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। दूसरी चीज, हमें उसके अंदर एक रिपोर्टिंग से वर्ब होते हैं कुछ, जैसे से मींस क्या होता है? कहना। टोल्ड का मतलब क्या होता है? बताना। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सवाल करना। तो ये 3-4 ऐसे वर्ब हैं जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, यानी इन्हीं वर्ब से रिपोर्टिंग की जाती है। स्पेशली इनका सेकेंड फॉर्म आपको जरूर यूज करना है। जैसे से का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? सैड। टेल का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? टोल्ड। और आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड। और क्वेश्चन का सेकेंड फॉर्म क्वेश्चनड। ऐसा कुछ आपको यूज करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में अब आपको इख्तियार होगा कि आप सब्जेक्ट को, जो जुमला मुतकल्लिम ने बोला है उसको आप हू बहु बयान करिए। अगर हू बहु बयान कीजिए डायरेक्ट है, और अगर हू बहु नहीं बयान कर रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब टेंसेस की चेंजिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की चेंजिंग कर रहे हैं, तो मेरी सूरत में हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगा। बनाने का तरीका आगे मौजूद है। ये बेहतरीन तरीके से आपको व्हाइट बोर्ड के लेक्चर से समझ में आएगा। अभी आता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। चलिए जनाब, डायरेक्ट स्पीच बनाने का तरीका। डायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त रिपोर्टर को चाहिए कि सबसे पहले वो रिपोर्टिंग सेंटेंस को जिक्र करे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा,
इन्वर्टेड कोमा के बीच में स्पीकर के कौल को लफ्ज ब लफ्ज नकल करें। मसलन मैंने आपसे कहा था न्यूयॉर्क लंदन से ज्यादा पुररौनक है। न्यूयॉर्क इज वर न्यूयॉर्क इज मोर लाइवली देन लंदन। न्यूयॉर्क इज मोर लाइवली देन लंदन। तो आप इस बात को डायरेक्ट स्पीच में नकल करते वक्त कह सकते हैं खुर्शीद सर सेड टू मी न्यूयॉर्क इज मोर लाइवली देन लंदन। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए जब आप डायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो डायरेक्ट स्पीच में ज्यादा लंबा चौड़ा तूल तेवाल नहीं होता है। आपको सिर्फ रिपोर्टिंग सेंटेंस तैयार कर लेना है। रिपोर्टिंग सेंटेंस कैसा होता है? ही सेड, शी सेड, ही टोल्ड, दे टोल्ड, ही आस्क्ड, शी आस्क्ड, ठीक है। इसी तरीके से माय फादर क्वेश्चनड, कोई भी गायब का सेगा लाइए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर पर, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म लाइए, ये रिपोर्टिंग सेंटेंस बन जाता है। अगर आप डायरेक्ट में कोई बात नकल कर रहे हैं तो आप दोनों को यानी डायरेक्ट में बोले जाने वाले या लिखे जाने वाले जुमलों को, लिखे जाने वाले जुमलों को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। और अगर बोल रहे हैं तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप उसमें कॉमा है नहीं है, क्योंकि कॉमा को तो बोला जाता नहीं है। डियर स्टूडेंट, जैसे आप कहेंगे खुर्शीद सर सेड टू मी, खुर्शीद सर ने मुझसे कहा न्यूयॉर्क इज मोर लाइवली देन लंदन, तो देखो खुर्शीद सर सेड टू मी ये एक रिपोर्टिंग सेंटेंस है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है और कॉमे के बीच में खुर्शीद सर के मुंह से निकला हुआ लफ्ज बलफ्ज हमने नकल कर दिया। ये क्या कहलाया बताओ? डायरेक्ट स्पीच। चलिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का तरीका जल्दी पढ़ेंगे जनाब। डायरेक्ट स्पीच बनाने का तरीका कायदा इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच से बनाया जाता है। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप रिपोर्टिंग सेंटेंस को इस्तेमाल करें और ये रिपोर्टिंग सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसका तफसीली तज़किरा माक़बल में आ चुका है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट को इस्तेमाल करें। उसके बाद स्पीकर के असल जुमले में अगर आई सब्जेक्ट हो तो उसको ही, शी या नेम से बदलें और अगर वी हो तो उसको दे से बदलें। उसके बाद स्पीकर के असल जुमले में जो भी टेंस इस्तेमाल किया गया हो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त उस टेंस को उसके ऑपोजिट टेंस से बदलें। और अगर असल जुमले में सब्जेक्ट मुखातब की ज़मीर यू हो तो उसको मी या अस से बदलें, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से है। ये बात समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इनडायरेक्ट बनाना, क्योंकि डायरेक्ट तो बिल्कुल हलवा है, डायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है? इनडायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट में बहुत सारी चेंजिंग करनी पड़ती है। यहाँ सब्जेक्ट चेंज करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, यहाँ टेंस चेंज करना है, जो टेंस यूज हुआ है। जैसे मुतकल्लिम ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया, तो अब जब आप इसको इनडायरेक्ट में बयान करोगे तो किससे बदल दोगे? पास्ट कंटिन्यूअस से। मुतकल्लिम ने अगर प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट से चेंज कर दोगे, यानी टेंस बिल्कुल अपोजिट आएगा। और जब टेंस अपोजिट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली से ही टेंस बदल रहे हैं। सब्जेक्ट जरूर क्या होगा बताओ? अपोजिट होगा, यानी मुतकल्लिम गायब से बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट में भी चेंजिंग होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट मुखातब यू है तो उसको आप मी या अस से बदल दीजिए, और अगर मी अस है तो उसको यू से भी बदलना है, तो ऐसा भी होता है। तो मुखातब को मुतकल्लिम से बदलेंगे ऑब्जेक्ट की ज़मीर में, और मुतकल्लिम हो तो उसको मुखातब से बदलेंगे, और अगर सब्जेक्ट की ज़मीर हो तो मुतकल्लिम को गायब से बदलेंगे। ये चेंजिंग थोड़ी जहन में रहेगी। टेंसेस की तब्दीलियाँ किस तरह होगी देखिएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस से बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से चेंज करना है। और जनाब यहाँ पर देखिए पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट से, फ्यूचर पर सिंपल विल वाला सेगा है। मैंने बताया था ना, कल ही हम लोगों ने वुड पढ़ा। विल क्या है? वो होगा जब आप प्रेजेंट से बात कर रहे हो, और जब वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो मुस्तकबिल का, वो पास्ट हो गया, या माजी के अंदर कोई फ्यूचर का सेगा यूज कर रहे हो, तो अब ये विल नहीं चलेगा। विल को किससे बदल देंगे? वुड से। जैसे लिखा मैंने, फ्यूचर सिंपल विल वाले को फ्यूचर सिंपल वुड से बदल देंगे। मॉडल वर्ब कैन को मॉडल वर्ब कुड से बदल देंगे। मॉडल वर्ब मे को मॉडल वर्ब माइट से बदल देंगे। मॉडल वर्ब शुड मस्ट को मॉडल वर्ब शुड हैव या मस्ट हैव से बदल देंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस को मस्ट हैव से या इंफिनिटिव से बदलेंगे। जैसे कि मिसालों से गौर करो। यहाँ एक मिसाल है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आपने मुझसे कहा कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश,
और मैं इसको किसी के सामने नकल करना चाहता हूं। आपका नाम क्या है? अनवर है। आपने कहा अनवर से, तो मैं क्या कहूंगा? अनवर सेड आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो देखो मैंने यहां पर अनवर के जुमले में कोई चेंजिंग नहीं की, जैसा उसने कहा वैसे ही मैंने क्या कर दिया? नकल कर दिया। ये डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट बहुत आसान है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाना हो तो आप कहिएगा अनवर सेड दैट। वो जो इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह पर दैट प्रयोग करेंगे, और जो आई है उसको ही से बदला, वांट को वांटेड किया, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल से चेंज किया, और जुमला बना अनवर सेड दैट ही वांटेड टू लर्न इंग्लिश। जनाब ऑनलाइन वाले तलबा मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर, यस बड़ी यस सर, important बहुत बात आसानी है। से समझा रहे हैं। यस मैं- रहा है। मैं कह रहा हूं ना, कोई आप चक्कर लगा करके रहो भैया, तुमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई जल्दी नहीं समझा पाएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं। आप मेरा 2 लेक्चर देखो, एक किताब वाला लेक्चर और एक व्हाइट बोर्ड वाला लेक्चर, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा। तुम सोच रहे होगे इतना भारी, इतना इजी हो गया, तसव्वुर नहीं कर सकते डियर फ्रेंड्स। देखो आई एम गोइंग टू गिव अप माई जॉब। किसी ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू गिव अप माई जॉब, कि मैं अपना जॉब छोड़ने जा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिगा है। उसने कहा कि मैं अपना जॉब छोड़ने जा रहा हूं, तो चूंकि मुझको रिपोर्टिंग सेंटेंस बनाना है, रिपोर्टिंग सेंटेंस में आई को ही से बदला और से सैड कर दिया, ही सैड। और उसके बाद मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, जो उसका जुमला था हूबहू बोल दिया, आई एम गोइंग टू गिव अप माई जॉब। ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट अगर कहना है तो बोलेंगे ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू गिव अप हिज जॉब। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट को लाया, आई की जगह ही को लाया, एम की जगह वाज को लाया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस से चेंज करके जुमला ऑटोमेटिक बन गया। ये होता है डिरेक्शन इनडायरेक्ट। वी हैव रिटन द पेपर, हम लोगों ने पेपर लिख लिया है। उसने मुझे बताया कि हम लोग पेपर लिख चुके हैं। दे टोल्ड मी वी हैव रिटन द पेपर, उन्होंने कहा था कि वे लोग पेपर लिख चुके थे। दे टोल्ड मी दैट दे हैड रिटन द पेपर। प्रेजेंट परफेक्ट को किससे बदल दिया? पास्ट परफेक्ट से चेंज कर दिया। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखो कैसे बन रहा है। डायरेक्ट में है कि अनवर सेड दैट आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011, बिल्कुल सही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इनडायरेक्ट में कहेंगे कि अनवर सेड दैट ही हैड बीन टीचिंग सिंस 2011। आई डिड नॉट कम, पास्ट सिंपल का सेगा है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? ही सेड आई डिड नॉट कम, उसने कहा मैंने नहीं आया था। अच्छा जी, इनडायरेक्ट में आप कहिएगा ही सेड दैट ही हैड नॉट कम, कि वो नहीं आया था। आई विल कम, मैं आऊंगा, फ्यूचर सिंपल का सेगा, इसको कैसे चेंज करोगे? ज़ैद सेड आई विल कम सून, कि मैं जल्दी आऊंगा। इसको देखो इनडायरेक्ट में कहोगे ज़ैद सेड दैट ही वुड कम सून। देखो यहाँ विल को वुड से बदला। वुड का एक इस्तेमाल समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बताया भी था कि आगे चल के समझ में आएगा। वी कांट हेल्प यू, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। दे सेड वी कांट हेल्प यू, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो हमारी मदद नहीं कर सकते। दे सेड दैट। अलग इस तरीके से डिरेक्शंस आप पढ़ते जाइएगा। ये है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, के मुंदरजा झैल जुमलों को डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। आपको करना कुछ नहीं है। आई डोंट लाइक दिस जॉब, मुझे ये जॉब पसंद नहीं है। इसको किस में बनाना है? डायरेक्ट में। तो डायरेक्ट में कुछ करना ही नहीं है, आई को ही से बदलो और रिपोर्टिंग वर्ब सेड ले आओ। जैसे ही सेड और मी लाना है तो ही सेड टू मी आई डोंट लाइक दिस जॉब। वो बहु जुमलों को क्या करना है बताओ? नकल कर देना है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए जनाब? नहीं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, के मुंदरजा झैल जुमलों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आई स्पीक इंग्लिश वेल, मैं अच्छी तरह इंग्लिश बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। अगर आपको इसको इनडायरेक्ट में बनाइएगा तो आई को किससे बदल लीजिएगा? ही से। ही और उसके बाद सैड टोल्ड कुछ भी लाइए, जैसे ही सैड उसने कहा, और फिर उसके बाद डेट जरूर लाएंगे। दो जुमलों के बीच में क्या लाएंगे? डेट। और ये डेट जो है ना एक तरीके से कॉमे की जगह पर है। ही सैड डेट और आई को ही से बदलो, बोलो ही सैड डेट ही। और स्पीक को सेकेंड फॉर्म स्पोक से बदल दो, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल से बदलेंगे। तो ही सैड डेट ही स्पोक इंग्लिश वेल, बस हो गया फटाफट। तो बहुत आसान है डियर फ्रेंड्स। और ये है ट्रांसलेट द फॉलोइंग एसे इनटू इंग्लिश, कि मुंदरजा झैल मजमून को अंग्रेजी में तर्जमा करें। कुदरत ने इस दुनिया में बेशुमार जुबानों को पैदा किया। देखा जाए तो ये जो सेगा है, कुदरत ने इस दुनिया में बेशुमार जुबानों को पैदा किया। असल सेगे की तरफ ध्यान दो। असल सेगा क्या है? पैदा किया। और पैदा किया की इंग्लिश क्या होगी? क्रिएटेड। किसने पैदा किया? नेचर ने। कुदरत का मतलब हो जाएगा नेचर हैज क्रिएटेड
किया है, नेचर हैज क्रिएटेड, द ऑलमाइटी अल्लाह हैज क्रिएटेड बेशुमार जुबानों को, काउंटलेस लैंग्वेजेस, यहाँ पर बेशुमार की इंग्लिश लाएंगे, काउंटलेस लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड। हर चंद 100 किलोमीटर के फासले पर हमारी जुबानें बदल जाती है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, देखो अगर बना सको तो बना लेना, बाकी इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मैं खुद से बना कर भी भेजूंगा, आप वहां पर देख लेना। हर चंद 100 किलोमीटर में हमारी जुबानें बदल जाती है। टेंस तलाश करो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है हमारी जुबानें, यहाँ पर सब्जेक्ट है। चंद 100 किलोमीटर के फासले पे आफ्टर यहाँ आएगा, आफ्टर 100-200 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन एक ऐसी जबान जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस है। बट अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इंग्लिश है, दैट इज इंग्लिश। क्योंकि अंग्रेजी एक बैनुल अक़वामी जुबान है, ये प्रेजेंट प्रेडिकेट है, बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में एक अंग्रेजी जुबान की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है? असल जुमला है, कौन इनकार कर सकता है? हु कैन डिनाई, कौन इनकार कर सकता है? ये असल जुमला है, हु कैन डिनाई, कौन इनकार कर सकता है? किसकी? अंग्रेजी जुबान की अहमियत को, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कौन इनकार सकता है? हु कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द डेवलप्ड एज या डेवलप्ड टाइम। तरक्की याफ्ता दौर की इंग्लिश देख लीजिए, डेवलप्ड टाइम, इन टुडेज डेवलप्ड टाइम्स। आ गया, फटाफट बन जाएगा डियरेशंस। कुछ समझ में आ रहा है? ट्रांसलेशन कैसे करोगे? मजमून निगारी पर पहुंच चुके हैं आप लोग, जुमला निगारी का दौर खत्म हो गया। अल्लाह भला करे उन तलबा का जिन्होंने जुमला निगारी तो किया नहीं, भला वो मजमून निगारी कहां से कर लेंगे? अब वो झक मारेंगे। ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? झक मारना। अब अपना जायजा लगाओ, तुमने मेरी किताब अंग्रेजी ग्रामर हिस्सा, तुम कुर्सी चेंज करो उसको लो जी, तुमने मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर हिस्सा अव्वल में कौन कौन से सबक का तुमने अंग्रेजी तर्जमा किया? नहीं किया होगा, डेफिनेटली नहीं किया आपने। तो गौर करो, जब नहीं किए हो तो फिर कैसे फायदा होगा? उसे छोड़ दो जनाब, आप इस पे बैठ जाओ जी। डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप लोग या नहीं समझ रहे हैं? यस। तो अगर आप जुमला निगारी नहीं किए हो अंग्रेजी ग्रामर हिस्सा अव्वल में, तो अंग्रेजी ग्रामर के हिस्सा 2 में मजमून निगारी भैया तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। वैसे मैं मदद तो करूंगा तुम्हें इसमें, लेकिन ऐसा बहुत कम है कि आप इस पर ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स। तो अंग्रेजी जुबान का कौन इनकार कर सकता है भाई? अंग्रेजी जुबान जानने वाला दुनिया के किसी भी खित्ते में अपने आप को भी जुबान नहीं समझता है। असल इंपॉर्टेंट जो सेगा है वो क्या है? नहीं समझता है। Okay, the person who knows English doesn't know, या ये कि आप कहोगे the person who knows English, वो शख्स जो जुबान जानता है, he doesn't feel languageless या languageless in this world, in the every corner of the world, दुनिया की किसी भी खित्ते में। और आज इस वक्त पूरी दुनिया में इंग्लिश एक बैनुल अक़वामी जुबान के ऐसे से बोली जाती है। असल जुमला है इंग्लिश बोली जाती है, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस है, इंग्लिश इज स्पोकन। ठीक है, पूरी दुनिया में अंग्रेजी एक बैनुल अक़वामी जुबान की हैसियत से, ठीक है, की हैसियत से कि इंग्लिश आएगा एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज स्पोकन एज इंटरनेशनल लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। जबकि वो दुनिया के वो ममालिक जहां पर अंग्रेजी बैनुल अक़वामी जुबान के हैसियत से नहीं बोली जाती है, बट द कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एज नेशनल लैंग्वेज, फिर भी अंग्रेजी जुबान वहां के कौमी जुबान के साथ बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन अलॉन्ग विद देयर नेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल्दो, यहाँ फिर भी के लिए लेंगे, ऑल्दो इंग्लिश इज स्पोकन अलॉन्ग विद देयर नेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सरकारी दफातर हो या यूनिवर्सिटियां, कॉलेज हो या स्कूल, हर जगह अंग्रेजी जुबान लिखी और बोली जाती है। ओके, आप इसको असल जुमला है अंग्रेजी लिखी और बोली जाती है। इंग्लिश इज रिटन एंड स्पोकन एवरीवेयर, वेदर गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और स्कूल्स, इस तरह बन जाएगा। अंग्रेजी न जानने वाले को जाहिल तस्वुर किया जाता है। असल जुमला है जाहिल तस्वुर किया जाना। So the person who doesn't know English is imagined illiterate, ऐसे बोल सकते हो। इस जुबान की अहमियत की वजह से आज इस जुबान को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Because of the importance of this language, we need to learn English language.
टुडे। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट, इस तरीके से अगर आप चाहें तो फटाफट बना सकते हैं। और जनाब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के ताल्लुक से एक इंग्लिश भी मजमून है जिसको उर्दू में करके लाना है। तो ये जो काम है ना इंग्लिश को उर्दू में करके लाना, ये आप देख लीजिएगा, ये भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन जरूर याद करके लाना है। कन्वर्सेशन अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, कल मैं ये सईद मैं रहूंगा, या सईद आप हो जाना, अनवर मैं रहूंगा। खुर्शीद अनवर मेरा नाम है, सईद अनवर मेरे बच्चे का नाम है। ये सईद और अनवर दोनों मिलाकर सईद अनवर मेरे साहबजादे का नाम है और मेरा नाम खुर्शीद अनवर है। यहाँ पर मैंने गुफ्तगू कर दी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। सईद कहता है हाय माय फ्रेंड, हेलो हाउ आर यू। सईद कहता है फाइन, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका। तो कहते हैं अनवर, Hey, my name is Anwar. Nice to meet you, Mr. Anwar. Nice to meet you too. Here is that. Where are you from? कहाँ के हैं आप? I am from देवबंद, मैं देवबंद के हूँ। What do you do? आप क्या करते हैं जनाब? I am a student and what about you? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और आप क्या हैं? आप बताइए। I am a student too, कि मैं भी स्टूडेंट हूँ। और डियर स्टूडेंट्स अगला सवाल है विच क्लास आर यू इन, कि आप कौन से क्लास में हैं। तो यहाँ पर आप जवाब दिएगा आई एम इन 10th क्लास, मैं 10वीं में हूँ। व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, आपका स्कूल का नाम क्या है भाई। माई स्कूल्स नेम इज अल हुदा इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल, ये हमारे इदारे का नाम है। व्हाट्स योर प्रिंसिपल नेम, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है। माई प्रिंसिपल नेम इज खुर्शीद अनवर, कि मेरे प्रिंसिपल का नाम खुर्शीद अनवर है। व्हाट्स योर फ्यूचर गोल, आपका फ्यूचर गोल क्या है जनाब। आई वांट टू बी अ गुड आलिम एंड अ गुड डॉक्टर ऑल्सो, मैं एक अच्छा सा आलिम, एक अच्छा सा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सईद कहते हैं माशाल्लाह गुड प्लानिंग। व्हाट आर योर हॉबीज, आपके हॉबीज क्या है। रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग क्रिकेट्स आर माई हॉबीज, ये सब मेरे हॉबीज हैं। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, That's great. One day you will be success. एक दिन आप कामयाब होंगे। Thanks. Welcome. Have a nice time. Nice to meet you. See you again. Assalamu alaikum. Walaikum same to you. Walaikum assalam. ये जाकर के डियर स्टूडेंट्स एक लंबा चौड़ा चैप्टर पूरा हुआ और अभी तो ये भारत खानी में ही हमारा लगभग 40 मिनट होने के है। ब्रदर्स एंड सिस्टर, अभी व्हाइट बोर्ड वाली इबारतें भी समझनी है। इसको हो सकता है कि मैं 2 दिन टाइम दूं, इसी चीज को मैं फिर भी कल समझाऊंगा, ठीक है। तो इसी चीज को मैं फिर से कल करूंगा। आप आज क्या करो, किताब का मुताला करके लाना, ये वाला वीडियो लेक्चर को बार बार देख करके आना। किसको न समझ में आया तो मैं इसे देखता हूँ, एडिट करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, फिर यूट्यूब वाला मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से इसे देख कर लाना। और व्हाइट बोर्ड वाली के भी वीडियो है मेरे पास यूट्यूब पर, तो हो सकता है कि उसका लिंक शेयर कर दूं। वो वुड वाली वीडियो मेरे को मिली नहीं, मैंने तलाश किया था, मिली नहीं, तो हो सकता है कि वो एप्लीकेशन पर तो हो और उस पर ना हो, यूट्यूब पर ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स बताएं जनाब, आइंदा कल के लिए सिर्फ ये वाला सबक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की गहरी स्टडी करके लाना और कोशिश करना जुमले बनाने का। ना बना सके तो मैं फिर इस मौजू पर कल हेल्प करूंगा, बल्कि मैं कल जुमले बना कर दूंगा और फिर उसमें से तहकीक करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो आइंदा कल के लिए मैं समझता हूँ डियर स्टूडेंट्स यही सबक रहेगा, सिर्फ ये बुक वाली वीडियो लेक्चर को देखना, फिर मैं आइंदा कल व्हाइट बोर्ड वाली लेक्चर में दूंगा। पहले मुताला हो जाएगा ना तो व्हाइट बोर्ड वाला समझना बोलो आसान रहेगा। इट्स एनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।